لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے ادھر امام مسلم کی شام کو شہادت ہوئی 8ویں ذی الحجہ کو، ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اور ادھر اس ظالم نے جب شام ہوئی تو ہوتے ہوتے اعلان کیا، ہم نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچے ان کے ساتھ تھے محمد و ابراہیم، جو ان کو ڈھونڈ کر لائے گا، انعام دیں گے، اکرام دیں گے۔ اس طرح کی بات اس ظالم نے کہی۔ کوفہ والے دروازے تو بند کر ہی چکے تھے، پورا کوفہ خون میں گویا کہ ڈوبا ہوا تھا، ہیبت طاری تھی، سناٹا تھا۔ کوفہ والوں کی بے وفائی قیامت تک تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، لیکن صرف بے وفائی نہیں، بے وفائی کے ساتھ دغا بازی، دھوکہ بازی اور ان کی سوچ کا نچلا پن بھی یاد رکھا جائے گا۔ ادھر وہ لوگ اسی امام مسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیے، بلکہ ادھر آپ کے بچوں کو ڈھونڈنے بھی نکل گئے۔ حضرت امام مسلم جب حضرت ہانی کے گھر تھے، حالات خراب ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا۔ ادھر رات آدھی گزر گئی، قاضی شریح محمد ابراہیم کو بلاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، تو محمد ابراہیم بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب، آپ جس انداز سے ہمیں چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں قاضی صاحب، آپ یتیموں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ قاضی شریح کا جو مولا علی کے شاگرد بھی تھے، ان کا اندر کا صبر پھوٹ پڑا، سینے لگا کر رو پڑے، کہا شہزادو آج تم لوگ یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ظالم ابن زیاد نے تمہیں پکڑنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گرگے چھوڑ رکھے ہیں، اس لیے بہت خاموشی کے ساتھ تم لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک قافلہ باب العراقین سے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے، تم جلدی سے وہاں چلے جاؤ، میرا بیٹا تمہیں پہنچا دے گا باب العراقین، اور پھر وہاں سے قافلے کے ساتھ ہو لینا اور مدینے جانا، تمہارے نانا کو میرا سلام پیش کرنا۔ ننھے ننھے بچوں نے سنا باپ شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ اکبر، عالم غربت ہے، عالم مسافرت ہے، بچوں نے کبھی دکھ کی خبر نہیں سنی تھی۔ محمد و ابراہیم ایک دوسرے کو مل کر لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ ایسے میں قاضی نے کہا، قاضی شریح کہتے ہیں بچوں تاخیر نہ کرو، جلدی جاؤ کہیں قافلہ نکل نہ جائے، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جلدی جاؤ، باب العراقین پر قافلہ انتظار کر رہا ہے، جلدی جا کر کے ان بچوں کو، شہزادوں کو وہاں پہنچا دو۔ ننھے ننھے بچے جب اپنے گھر سے نکل کے نانا کے مزار پہ جاتے تھے تو لوگ ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، مگر آج بچوں کو اکیلے سفر کرنا تھا قافلے کے ساتھ۔ باب العراقین پر وہ قاضی شریح کا بیٹا جب پہنچا تو قافلہ نکل چکا تھا، لیکن قافلے کے گرد و غبار، قافلے کے آثار ابھی نظر آ رہے تھے۔ قاضی کے بیٹے نے کہا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، وہ گرد و غبار۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ناخن تدبیر سے کبھی تقدیر کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیشہ ہو کر کے رہتا ہے، ہمیشہ تدبیر پر خدا کی تقدیر غالب آتی ہے۔ ہوا وہی جو تقدیر میں لکھا تھا۔ ننھے ننھے شہزادے امام مسلم کے شہزادے بیٹے جو اللہ اکبر نواسے تو مولا علی کے تھے اور حضرت عقیل کے پوتے تھے، اللہ اکبر، ایسے ننھے شہزادے کھلتی ہوئی کلیوں کی طرح، کھلتے ہوئے گلاب کی طرح، ان کے حسین خوبصورت چہرے، ان کے کندھوں تک لٹکتی ہوئی زلفیں ان کے نانا کے حسن و جمال کی یاد تازہ کرتی تھی۔ ننھے شہزادوں نے جب کہا گیا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، وہ اس کا گرد و غبار ہے، تو اللہ اکبر، دوڑے دوڑے دوڑے، غبار تو ختم ہو گیا، گرد راہ تو نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، مگر قافلہ بھی نظر نہیں آیا۔ راہ اس کے بعد چلتے رہے، بہت دیر تک چلتے رہے، راستے میں کبھی کانٹا چپتا تو آہ کر کے رہ جاتے، بے چین ہو جاتے، کیونکہ کبھی کانٹوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا، راحتیں تھی، آرام تھا، اطمینان تھا، سکون تھا، عیش و عشرت کے سارے سامان قدموں میں امت محمدیہ نے ڈال رکھے تھے۔ آج اللہ اکبر
अकबर, ये कैसा वक्त था आले नबी की कलियों पर। अल्लाह अकबर। ऐसे में कोई आता है और आकर के पूछता है, ए लड़को कौन हो तुम? तो सच्चों की औलाद ने सच्ची सच्ची बात कह दी, हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। इतना सुनना था, पकड़ने वालों ने चेहरे पे तमाचे मारे और तमाचे मार के कहा, हम तुम्हें ढूंढते हैं और तुम भागे जाते हो। और उसके बाद अल्लाह अकबर, एक के बालों से दूसरों को बांध दिया गया और ले जाकर के जो है वो इब्न जियाद के पास पेश किया। इब्न जियाद पलीद ने कहा, इन लोगों को जेल में रखो, कैद खाने में डालो, मैं यजीद को लिखता हूँ इन बच्चों के बारे में क्या हुक्म है। यजीद जो भी हुक्म देगा, अगर जिंदा तो जिंदा पहुंचाएं, कत्ल तो यहाँ से कत्ल करके सर पहुंचाएं। मशकूर नामी उस जेल का दारोगा था, उसने शहजादों को देखा, उसने जो है उनकी जुल्फों को खोला और रात भर खिदमत करता रहा और रात के आखिरी पहर में अपनी अंगूठी दे करके कहा, शहजादों मैं तो तुम्हारे नाना से शफाअत का उम्मीदवार हूँ, ये जालिम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मेरा भाई कादसिया का फुला फुला जिम्मेदार है, उसको ये अंगूठी बताना, ये रास्ता कादसिया जाता है और ये रास्ता बहुत महफूज रास्ता है, इससे सीधे 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 चलते चले जाना, कादसिया पहुंचकर मेरे भाई को फुला मकाम पर वो तुम्हें मिलेगा, ये अंगूठी बताना, वो तुम्हें खैर आफियत से मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा। कहते हैं कि तकदीर के मारे, वक्त के हारे, जब रात भर चलते रहे, सुबह हुई तो अपने आप को एक जंगल में पाया और जब सुबह हुई तो सोचा हम तो रास्ता भटक गए, लेकिन करे क्या, कल का हादसा बेचैन करता था, बेकरार करता था, छुपने को कोई जगह न थी। एक दरख्त था, उस दरख्त के अंदर एक जो है सुराख था, दोनों जाकर उसी में दबक करके बैठ गए और उसके बाद कोई आता तो डर जाते, पत्ता खड़कता बेचैन हो जाते। ऐसे में एक बूढ़ी कनीज जो है पानी भरने के लिए आई, वहां पर एक तालाब था, जैसे तालाब में उसने अपनी मटकी डुबोना चाहिए तो उसने देखा बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, उन खूबसूरत चेहरों को पलट के देखा, बैद की तरह कांपने लगे। कहा, तुम तो इतने खूबसूरत हो, कोई शहजादे मालूम होते हो, बाहर निकलो, वहां इंसानों के बैठने की जगह नहीं, कौन हो तुम, बताओ तुम कौन हो। लेकिन बताने की हिम्मत नहीं थी, कल सच बोला था तो फंस गए थे और अब झूठ बोल नहीं सकते, सच भी नहीं बोल सकते, तो करें तो क्या करें। कहा, बताओ शहजादे हो, किसके हो, क्या हो, बताओ। मैं एक ऐसी खातून की कनीज हूँ जो अहले बैत की आशिक है, तुम्हारी पेशानी से अहले बैत का नूर नजर आता है, बोलो शहजादो कौन हो तुम। दोनों ने कह दिया, हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। इतना सुनना था, उसने उठाया, चूमा, ले गई और ले जाने के बाद अपनी मालका से कहा, मालका मैं तेरे लिए तोहफा लाई हूँ। क्या लाई हो? ये देखो मुस्लिम बिन अकील के बच्चे। उसी वक्त उसने अपना दुपट्टा उतार के कनीज के सर पे डाला और कहा, नबी के शहजादों को मेरे घर लाई, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। दोनों शहजादों को की जुल्फे दुरुस्त की और उसके बाद अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, बड़ी खिदमत की और उसके बाद का, शहजादों मैं तो तुम्हारी दादी की कनीज हूँ। अल्लाह अकबर, बहुत मोहब्बतों का इजहार किया। लेकिन वही हाल यहाँ भी था कि उसका शौहर जो है तलाश कर रहा था शहजादों को और जब रात देर गए वो जालिम आया, उसका नाम हारिस था। आने के बाद वो आया तो बीवी ने पूछा, हारिस इतनी ताखीर क्यों हुई? कहा, मेरा घोड़ा मर गया क्योंकि इब्ने जियाद ने मुस्लिम के बच्चों को कैद किया, वो बच्चे माज़अल्लाह भाग गए, मैं उनको ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते थक गया, मेरा घोड़ा मर गया, पैदल तलाश किया। उसने कहा, जालिम हारिस, आले नबी को तू तलाश कर रहा है कत्ल करने के लिए, अरे छोड़। उसने कहा, बीवी तुझे क्या पता, जोड़ा मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, मनसब मिलेगा, मकाम मिलेगा। इस तरह की वो बात करने लगा। बीवी ने उसको खाना दिया, वो सो गया। इधर सोया, रात के आखिरी पहर में सुबह के करीब बच्चों के रोने की आवाज आई। जब बच्चों के रोने की आवाज आई तो उसने कहा, कौन रो रहा है? हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं है, ये नन्ही नन्ही आवाजें कैसी? कहा, अरे तेरे कान बज रहे, तू सो जा, तू थका हुआ है। उधर बच्चे क्यों रो रहे थे? दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा और एक बड़े शहजादे हजरत मोहम्मद इब्ने अकील इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं, भैया उठो, ऐसा लगता है कि अब जिंदगी कम रह गई है, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा नाना जान है, मौला अली है, सैयदा कायनात है, इमाम हसन है और अब्बा पहुंचे तो नाना ने फरमाया, मुस्लिम तुम तो आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ा है, बच्चों को कहाँ छोड़ा है? तो
अब्बा जान कहने लगे आका बस अब वो थोड़ी देर में आते होंगे, वो भी आ जाएंगे और हमारे साथ वो भी हौज़े कौसर पे हाजिरी देंगे। भाई ने कहा, हज़रत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह की कसम यही ख्वाब हूबहू मैंने भी देखा है, इसका मतलब हमारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। दोनों शहजादे एक दूसरे को मिल मिल कर पकड़ पकड़ कर रोते हैं, रोने की आवाज बुलंद होती है। ऐसे में जो है वो उसका शौहर, उस खातून का शौहर हारिस आता है और दरवाजा खोलता है और खोलकर पूछता है कौन हो? सोचा ये हमारे मुहिब्बों का घर है, बता दिया मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं। सुनना था, चेहरे पे तड़ातड़ तमाचे मारे गए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं बाहर और मेरा घोड़ा भी मर रहा है, मैं थक भी रहा हूं और तुम मेरे घर में मजे ले रहे हो। बीवी ने बहुत समझाया लेकिन जालिम ने दोनों को बांधा और बांध करके अपने जो है वो घोड़े के आगे डाला और डाल करके घोड़े को खींच करके ले जाने लगा फुरात के किनारे। बीवी ने बचाने की कोशिश की, बीवी के सर पे उल्टी तलवार मारी, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। इसी तरीके से गुलाम ने बचाने की कोशिश की, उसको भी मारा, वो भी गिर के बेहोश हो गया। और दोनों बच्चों को लेकर के अल मुख्तसर ये कि फुरात के किनारे ले जाकर दोनों नन्हे शहजादे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम को ले जाकर के उसने कत्ल का मंसूबा बनाया। लेकिन जैसे कत्ल करने लगा हाथ कांपते थे। ऐसे में उसकी बीवी को होश आया, फिर बचाने आई, बहुत कोशिश की, बेटे ने भी कोशिश की, बीवी ने भी कोशिश की। दुनिया उसके दिमाग पे छाई हुई थी, दुनिया की दौलत उसके दिमाग पे छाई हुई थी, इसलिए उस जालिम ने सबको मार पीटा। और आखिर में जब बच्चों पे तलवार उठाया तो नन्हे नन्हे बच्चों में से मोहम्मद कहते थे पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि भाई का दुख न देखूं। इब्राहिम कहते थे पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि भाई का दुख न देखूं। जालिम ने कहा दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है, मैं तुम दोनों को एक साथ कत्ल करता हूं। और तारीख के औराक गवाह है कि उस जालिम हारिस ने दोनों शहजादों को एक ही बार में, एक तलवार के वार में शहीद कर दिया। नन्ही नन्ही गर्दनें उड़ गई और उसके बाद जिस्म जो है जमीन पे तड़पने लगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीन बचाने निकलने वाले नबी के खानदान के साथ ये सलूक हुआ, ये अंदाज हुआ। और उसके बाद दोनों शहजादों का सर लेकर इब्न जियाद बदनेहाद बानी फसाद उस पलीत के पास पहुंचा और कहा मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूं। क्या तोहफा है? देख तो सही। जब शहजादों का सर देखा, कहा ये क्या? तो कहा ये मुझे मिल गए थे, मैंने कत्ल कर दिया। अरे तूने क्यों कत्ल किया? मैंने तो यजीद के पास लिख भेजा कि इनके बारे में क्या हुक्म है, अब अगर वो जिंदा मंगाएगा तो मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? तूने मेरी इजाजत के बगैर कत्ल क्यों किया? तो कहा मुझे डर था कि कोई छीन न ले। अरे छीनने का डर था तो मुझे लिखता, मुझे कहता, अपना कोई नुमाइंदा नामाबर मेरे पास भेजता, मैं फौज भेज करके खामोशी से बुलवा लेता। तूने अपनी मर्जी से ये क्यों किया? मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? और उसके बाद गुस्से में आकर कहा तूने तो मुझे फंसा दिया। और फिर उसने सब पर नजर डाली और नजर डाल करके उसमें एक शख्स को पहचाना, वो मुहिब्बे अहले बैत था। उसको कहा तू इसको लेके जा, इनाम क्या दूं इस जालिम को, इसको भी ले जा, फुरात के किनारे इसको भी कत्ल कर दे। जब फुरात के किनारे लेकर के गया तो क्या देखा, अल्लाह अकबर, दो नन्हे नन्हे धड़ वहां पर पड़े हुए हैं और कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं। इस जालिम को वहां पर मार डाला गया, कत्ल कर दिया गया, यानी कुछ मिला नहीं। कहने वाले ने इसीलिए कहा न इधर के रहे न उधर के रहे। अहले बैत की बेवफाई ने दुनिया में भी जलील किया, आखिरत में भी जलील किया। और इस तरीके से फिर दोनों शहजादों को फुरात के किनारे दफन कर दिया गया। आज भी हजरत मोहम्मद और इब्राहिम की कब्रें फुरात के किनारे पर मौजूद है। फुरात तो अब काफी दूर हट गया है लेकिन बहरहाल कब्रें वहां पर मौजूद है।